अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, dear brothers and sisters. I hope so you are fine and in the best state of Iman. I am also fine, alhamdulillah. Well, there was little bit late class because I, little bit forgot about science class, and I was doing some research on, the critics of education, the brief history of education system. So now let's start our session as usually. So I don't know, previously there was Muhammad Ibrahim in the class, but Maaz was there. आपकी आवाज कट रही है। Yes? Yes, Khala, what were you saying? I couldn't hear. Okay, I don't know what you were saying. Well, I was saying to you, you have done, research work, you have done on it, and you showed me that you described all of the things, the Quranic ayahs previously, and Amaz also listened. 1 minute. So, Maaz and Ibrahim, I would like you guys to show your researches today, as it is very important. I already told you, Maaz, you have to do it next week session. And Ibrahim, what about you? Maaz, you have to participate and tell me about the research. Have you done the research? And if yes, so please let me know about the research and I describe. have done the research. Can I tell? Okay, yes, sure. Go on. In Surah Anbiya, ayat 30, Allah said, "The heavens and the earth were joined as one. Allah separated them." In Surah Al-Zariyat, ayat 47, Allah said, the universe is expanding. In Suratul Al-Araf, Yeah. ayat 54, Allah said, Allah created the heavens and the earth in 6 days. Big Bang Theory said there was no universe before the Big Bang. When then the Big Bang or very loud explosion happened, and the universe came into being from Maaz, I give you one another day. Very good, impressive. You also did a very good job, but still, it's okay. Khala and Maaz and Ibrahim. You guys also have to write your researches on what is Big Bang and up till now what we have learned and about the researches from the Quran as Maaz you have described and Khala you told. Okay, so Ibrahim, were you in the previous session? Maaz, impressive. Okay, great. But you have to write. You guys have to write your researches, all of that. Yes. No, You were not there. Okay, Khala, can you repeat whatever you researched previously and told in previous session? मैंने और भी रिसर्च किया, मैं वो भी ऐड कर दूं आगे। Okay, yes, sure. Go on. Yes, Khala. Bang theory was first proposed by Georges Lemaitre, a Belgian cosmologist and a priest. The scientists believed that there was nothing before the Big Bang and our universe
came into being from a single point which exploded and our universe was created. But we don't agree with this Big Bang. With this Big Bang से पहले भी हमारी universe थी. We have some evidence of the Big Bang from the Quran. हमारा ये नजरिया है कि ये सब कुछ खुद नहीं बना, बल्कि ये सब अल्लाह ने एक निजाम के साथ बनाया है। सूरह अंबिया में अल्लाह फरमाते हैं कि जमीन आसमान एक मिला हुआ मादा था, हमने इसको खोल दिया। अन्ना समावाता वल अर्ज़ा कानता रत्कन फफतकनाहुमा। रत्क मिलाना, फतक अलग करना, यानी जमीन और आसमान मिले हुए थे, अल्लाह ने इनको एक धमाके के साथ अलग किया और कहलाना शुरू कर दिया। सूरह नाम yes go. Bang was the beginning of material universe. There was a time before Big Bang which is unknown to science. Big Bang से पहले अल्लाह ने एक नूर पैदा किया जिसमें हरकत और हरारत नहीं थी, जिससे अल्लाह ने इंसानी रूहें और फरिश्ते पैदा किए। फरिश्तों का ताल्लुक इस मटेरियल यूनिवर्स से नहीं है। उस वक्त जिस्म नहीं था, सिर्फ रूहें थी जिनसे अल्लाह ने ये अहद किया, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? और तमाम अरवाह ने अल्लाह से मुआहिदा किया था और गवाही दी थी कि आप ही हमारे रब हैं। ये वादा अल्लाह ने इंसानी अरवाह से किया था। अभी मटेरियल वर्ल्ड शुरू नहीं हुई थी, अभी वक्त शुरू नहीं हुआ था, इसीलिए आलमे अरवाह में जो होता इसमें वक्त नहीं लगता। सूरह अंबिया में अल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह ने आसमान और जमीन 6 दिनों में पैदा किए, वो हमारे 6 दिन नहीं हैं। टाइम एलिमेंट वहां एग्जिस्ट नहीं करता। फिर बिग बैंग हुआ जिसमें शदीद तरीन हरारत थी, जिससे अल्लाह ने जिन्नात को पैदा किया। Surah Al-Hijr, and indeed we created the jinn before humankind from a smokeless flame of fire. अल्लाह ने जिन्नात को आदम अलैहिस्सलाम से बहुत पहले पैदा किया। मैंने यही किया। Very, 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 very good. Both of you, Maaz and Khala. इब्राहिम, आप इनसे एग्जाम्पल ले सकते हैं। और अब आपको अगले सेशन में नोट्स भी दिखाने हैं, क्योंकि ख्वाला और माज भी बना के लाएंगे। आप पीछे थोड़ा रह गए हैं, तो आपको नोट्स भी बनाने से मुतालिक आप तीनों को और सबमिट करवाने हैं। और इब्राहिम, आपको एक और चीज़ करनी है, अगले सेशन तक आप तैयारी करके आएंगे और ये इस तरीके से सब कुछ प्रेजेंट करेंगे, अपनी रिसर्च वगैरह जो हमने अभी तक किया है, जो आप सोचते हैं, आपका नज़रिया है, और रिसर्च कुरान पाक से करके आएंगे, जैसे अभी ख्वाला ने रिप्रेजेंट की है। ओके इब्राहिम, इज दैट क्लियर? मैंने दोबारा भी करना होगा? नहीं ख्वाला, आपको नहीं, इब्राहिम को करना होगा, क्योंकि मुआज और ख्वाला आप दोनों थे प्रीवियस सेशन में, और ख्वाला आप करके आई थी। तो फिर मुआज को मैंने कहा था प्रीवियस सेशन में कि वो इस सेशन में हमें प्रेजेंट करे, और उसने किया है। तो अब आप तीनों आप प्रीवियस सेशन में ना मुआज और ख्वाला थे, लेकिन इब्राहिम नहीं था। तो अब इस मर्तबा मैं आपको ख्वाला और मुआज, आपको एक टास्क देता हूँ, और इब्राहिम आपको 2 टास्क। तो वो एक टास्क है, वो सभी को दे रहा हूँ मैं, कि नोट्स बनाएं आप लोग इस रिसर्च के, और फिर वो मुझे सेंड करें ग्रुप में। ओके इब्राहिम, मुआज और ख्वाला, आपके लिए। और इब्राहिम, सिर्फ आपके लिए, कि आप तैयारी करके आए और अगले सेशन में मुझे मुआज और ख्वाला की तरह इसी तरीके से अपनी रिसर्च करके एक्सप्लेन करें इससे रिलेटेड। ओके, इज दैट क्लियर एवरीबडी? यस। ओके मुआज, आर यू क्लियर? यस। Okay, and Ibrahim, any questions? Yes, Ibrahim. Any questions if you wanna ask me? Okay.
This is your task. You have to complete and submit it. So, yes. अच्छा, वैसे अब सब लोग एक पॉइंट पे एक तरीके से आ रहे हैं, isn't that right? कि जैसे देखिए अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोग खुद भी अभी रिसर्चेस कर रहे हैं, तो आपको पता चल रहा है कि अल्लाह ताला ने ये लिखा है आयात में कि यस इंडीड आई एम द एक्सपैंडर ऑफ द यूनिवर्स। एक्सपैंडर का मतलब है फैलाना, यानी मैं ही फैलाने वाला हूँ यूनिवर्स को। और फैलता यूनिवर्स सिर्फ उस वक्त है कि जब वो किसी पॉइंट से स्टार्ट हो, और वो पॉइंट शायद से बिग बैंग हो सकता है। ओके, अभी भी हमने वो वाली मतलब उस तरीके की एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं उस पे रिसर्च की कि जिससे हमें पता चल सके कि बिग बैंग वाकई में हुई थी कि नहीं। लेकिन इस बात से हम श्योर हैं कि कोई ना कोई चीज ऐसी थी कि जिस वक्त जिस वक्त यूनिवर्स को कुछ भी नहीं था, और उसी सिचुएशन से निकलते हुए अब ये एक्सपैंड होने लगती है। एक्सपैंड सिर्फ उस वक्त होती है कोई चीज जिस वक्त वो फटे, जिस वक्त उसके पास फोर्स हो कि वो आउटवर्ड्स जा सके, और वो फोर्स बिग बैंग हो सकती है। सही है, यानी अब हम आ रहे हैं एक पॉइंट पे। समझ आ रही है सबको? इंटरेस्टिंग लग रहा है अब सबको? पहले तो थोड़ा बहुत बोरिंग लग रहा होगा, मैं भी यही सोच रहा था पहले कि शायद आप लोगों को बिग बैंग के बारे में एक्सप्लेन ना हो रहा हो। लेकिन अब हम कुछ ना कुछ करके उस पॉइंट पे आ गए हैं जहाँ पे हमें सारी चीजें क्लियर होने लगती हैं कि यस मे बी परहैप्स बिग बैंग इज राइट, क्योंकि इसमें इस्लामिक स्कॉलर्स ने भी बहुत कुछ बताया है। जैसे अगर हम लोग बात करें जाकिर नाइक है, उसके अलावा उसके अलावा भी बहुत सारे लोग होंगे, मुझे मैं पॉइंट आउट नहीं करना चाहता ना, मुझे इतने ज़्यादा डॉक्टर लोगों के बारे। इसरार अहमद है। यस, सो इस तरीके के लोग हैं जिन्होंने बिग बैंग का नाम लिया है। ओके, तो ये किसी मकसद के तहत लिया है। कोई भी स्कॉलर रिसर्च किए बगैर नहीं लेता। लेकिन हमें किसी के पीछे नहीं चलना, हमें खुद से भी रिसर्च करनी है जो हम कर रहे हैं अपने बलबूते पे कोशिश करके। और इसमें हम लोग बहुत सारे पॉइंट्स भी निकाल रहे हैं। ओके, सो हाउ इज गोइंग? फीडबैक आप लोग भी दे सकते हैं। सेशंस आर इंटरेस्टिंग फॉर यू गाइस, या फिर इनको और इंटरेस्टिंग लेकर जाया जाए कोशिश करके? यस खाला, माज एंड इब्राहिम, कैन यू गिव मी योर फीडबैक? They are interesting but slow. वेल यस वी आर स्लो बिकॉज, एक मिनट मैं इनका जवाब दे दूं खाला, फिर उसके बाद आप बताइएगा। वेल माज, आपके क्वेश्चन का जवाब यह है कि वी आर स्लो बिकॉज कि हम लोगों को सारी चीजें इजीली समझ आ सके, और कि हम लोग देखें, मुसलमान साइंटिस्ट और क्रिश्चियन साइंटिस्ट में सबसे बड़ा क्या फर्क होता है? कोई बता सकता है? ये नजरिया देखते हुए मैंने पूरा करिकुलम डिजाइन किया था। मुसलमान कुरान पे बिलीव करता। देखें, जो साइंटिस्ट्स होते हैं ना, मुसलमान और क्रिश्चियन, उनमें फ़र्क ये होता है कि जो अलग-अलग दीन के साइंटिस्ट होते हैं, वो दीन को ज़्यादातर इतना आगे नहीं रखते हैं। जैसे उनके पास बाइबल है, लेकिन वो साइंस को ज़्यादा तरजीह देते हैं, यानी वो साइंस के अंदर से भी ज़्यादा खोज निकालते हैं। वो बाइबल को सामने रखते हुए नहीं करते कुछ। लेकिन हम मुसलमान हैं, और चूँकि कुरान पाक में बहुत सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट लिखी हुई हैं, जिनको पढ़ना बड़ा इम्पोर्टेंट है, और जिनमें अल्लाह ताला ने बहुत कुछ खजाना उसमें बताया है। तो मुसलमान साइंटिस्ट को उस नुक्ता नज़रिए से गुजरते हुए जाना होता है, और उसमें ताखीर से वो आगे पहुंचता है, यानी उसमें इतना टाइम लगता है। ओके, तो हम लोग इसको हल्के हल्के इसलिए लेकर जा रहे हैं क्योंकि आप लोगों को इजीनेस रहे, क्योंकि देखें अभी हमारा पहला टॉपिक था ये। और बिग बैंग मैंने, मेरी मम्मा और मैंने मिलके डिज़ाइन किया था ना पूरा करिकुलम, तो उसमें बिग बैंग नहीं था। लेकिन ये मैंने अपनी तरफ से डिज़ाइन किया था, तो मेरी मम्मा की तरफ से भी आया था कि अभी ये ना करवाएँ, अभी आप इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स करवाएँ। लेकिन मैंने ये यहाँ से इसलिए करवाया ताकि हम लोग लाइफ़ से स्टेप बाय स्टेप आगे जाएँ। हम लोग इंटरनेशनल करिकुलम से बिल्कुल भी नहीं जा रहे, बल्कि कुरान के नुक्ता नज़रिए से जा रहे हैं। और कुरान का नुक्ता नज़रिया आई थिंक सो यहीं से स्टार्ट होता है, लाइफ से, बिग बैंग से। और बिग बैंग के बाद ही लाइफ आती है, यानी यूनिवर्स कैसे बनी, 6 दिन में कैसे बनी, टाइम एलिमेंट, ये सारी चीज़ें, स्पेस, मैटर, एनर्जी,
फोर्स, ग्रेविटी, ये सब कुछ। ओके, ये आता है कुरान के नुक्ता नजरिए से। जब गुजरेंगे तो स्पेस का, इस सब का हमें बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना। ये साइंस से भी कनेक्टेड है, एस्ट्रोनॉमी से भी। वैसे तो ये आपका है कि हम लोग ताखीर से इसलिए जल्दी जल्दी किसी चीज को कोप अप नहीं कर पा रहे, क्योंकि हम क्रिश्चियन साइंटिस्ट्स के नजरिए को नहीं देख रहे। हम लोग उनके नजरिए को पिक बिल्कुल नहीं कर रहे। क्रिश्चियन साइंटिस्ट ने भी ताख़ीर लगाई है साइंटिफिक रिसर्चेस करने में, लेकिन वो दीन के हवाले से नहीं की उन्होंने कोई ऐसी रिसर्च। उन्होंने जो है ना, मतलब सिर्फ साइंस के ही नजरिए से किया सब कुछ। लेकिन हम जो कर रहे हैं ना, वो कुरान को देखते हुए कर रहे हैं सब कुछ। तो इसलिए हमें देर लग रही है। आई होप सो मार्क्स आप क्लियर हो गए होंगे इस चीज में। और फिर हमारा पहला टॉपिक भी था, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा जरा सा स्लो लेकर जाऊं और डिटेलिंग से पढ़ाऊं। So I hope so Mars it would be clear for you। इसको इंटरेस्टिंग लेकर जाने के लिए मैं अभी 2-3 और चीज़ें निकाल रहा हूँ। जैसे डे बाय डे एवरीडे वर्कशीट मैं आप लोगों को ग्रुप में शेयर कर सकता हूँ। फिर उसके अलावा आप वो कर सकते हैं सेंड मुझे, ताकि आप लोगों के जो मतलब वो है ना, तो आप लोग उसको सॉल्व करें। आपको क्रिटिकल थिंकिंग इससे आएगी, बहुत सारी चीज़ें आएँगी। फिर एक्सपेरिमेंट्स आपको और ज़्यादा दूँ, ताकि फिर आप लोग जो है ना, फ़ारिग वक़्त में वो काम करें, ओके? इब्राहीम एंड ख़्वाला, आप बताएँ। पहले ख़्वाला आप बता दें, फिर इब्राहीम आप बताएँ। जी ख़्वाला। मेरा भी यही क्वेश्चन है कि हम बहुत स्लो चल रहे हैं। मेरा भी यही क्वेश्चन है। तो वो अभी क्या क्लियर हो गया या फिर थोड़ी-सी और तफ़सील दूँ उसके लिए? बस क्लियर क्लियर हो गया। ओके, वेरी गुड। तो मुझे लगता है आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा। आई होप सो। और इंटरेस्टिंग बनाने की मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, मेरी पूरी कोशिश है। क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग हैं ना, उनको साइंस थोड़ा बोरिंग लगता है, मुझे भी बहुत लगता था पहले। लेकिन मैं उस जगह पे ला रहा हूँ जहाँ पे आप लोगों के क्रिएटिव माइंडसेट्स जो है साइंस सब्जेक्ट को कबूल कर सकें। यस, दिस इज इंटरेस्टिंग। ओके, सो यस इब्राहिम, अब आप अपना फीडबैक दे दें। मेरा भी यही सवाल था कि हम इस वक्त बहुत स्लो जा रहे हैं और आपका कभी कभार सेशन भी नहीं होता। कभी कभार सेशन इसलिए नहीं होता क्योंकि अभी आपको पता है शिफ्टिंग हमारी हुई है। उसके अलावा अभी मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स पे भी काम करना है, जिनके बारे में मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा। मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब रही है, वेदर इशू था इसलिए, स्मॉग की वजह से। फिर उसके अलावा इंटरनेट भी कभी कभार नहीं आता था क्योंकि हमारे घर में इंटरनेट नहीं लगा था, इसलिए। लेकिन अब लग गया है। और अब मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी मेरी कि अब कोई क्लास मिस ना हो और ताख़ीर से भी जॉइन ना कर पाएँ, क्योंकि अभी बहुत इम्पोर्टेंट मेरी रिसर्च चल रही थी। मैं उससे रिलेटेड आपको वीडियोज़ भी शेयर करूँगा कुछ, अगर आपको देखनी हो तो आप देख लीजिएगा, एजुकेशन सिस्टम से मुताल्लिक़ है। तो यही सारी चीज़ें हैं। आइंदा से इस बात का ख़्याल रखा जाएगा कि ताख़ीर से हर चीज़ ना हो, जल्दी क्लास हो अच्छे तरीके से, उसमें एंटरटेनिंग क्लास हो, जल्दी लेकर जाया जाए सब कुछ, और अच्छी सारी चीज़ें हों, कोशिश करके इंटरेस्टिंग और लेकर जाया जाए। सो आई होप सो यू गाइज़ आर एग्री विद दिस क्लास। So take care of yourself, dear brothers and sisters. Until then, we will meet in our next session. और जब तक के लिए मैं सिर्फ आपको एक रिमाइंडर दे देता हूँ शॉर्ट सा, कि you have to finish your homework. Okay, Hala and Maz have only one homework, which is making notes and sending me. Ibrahim have two homework, which is making the notes and as well as explaining me in the next class. Okay, so dear brothers and sisters, I would like you guys to then leave the meeting, because now let's wrap अल्लाह up हाफिज। our session. So thank you very अल्लाह much. हाफिज। Jazakallah khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah Hafiz. वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz.